سوال جب بھی نبی کے دشمن کریں گے سنی کے عالموں سے، تو نجدیوں کا وہابیوں کا، تو نجدیوں کا وہابیوں کا بریلی والا جواب ہوگا۔ فری ہیں، آپ بات کر لیں۔ حضرت شرائط طے ہوئے ہیں، 2 منٹ باتوں کی۔ حضرت جی میں پہلے بول لے رہا ہوں حضرت ہیلو، ہاں بولیے۔ کیا آپ کو میری بات سنائی دے رہا ہے؟ بس سنائی دے رہا ہے آپ کی آواز۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے۔ آپ تو سو گئے، بولیے۔ میرا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک ہے وہ نور سے پیدا نہیں ہوا، آپ کون یہ بول میرا رہے دعویٰ ہے۔ یوسف۔ کس مکتب فکر سے ہیں آپ؟ میں نہ دیوبندی ہوں اور نہ بریلوی ہوں، میں جمہور علماء اہل سنت کو اتباع کرتا ہوں، جیسے مصر ہے، سوریہ ہے، فلسطین ہے، اور اب کی جو ممالک ہے اس طرح کی، اور جیسے آپ سوریہ ہے، فلسطین ہے، میں سمجھا ترکی نہیں آپ کی وغیرہ۔ بات۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ میں نماز آپ کو فلسطین کہنا میں جا چاہ کے رہا پڑھتے ہوں، ہو کیا؟ نہیں بھائی، نماز میں کس کے اپنے پیچھے ملک میں پڑھتے ہو پڑھتا نماز؟ ہوں، فلسطین میں نہیں پڑھتا ہوں۔ کس کے پیچھے پڑھتے ہو؟ میں آپ کو کہنا میں شافعی ارے میں کہہ رہا ہوں نماز کس کے حنفی پیچھے نہیں۔ پڑھتے ہو؟ ہاں، نماز کس کے پیچھے پڑھتے ہو؟ نماز کبھی میں دیوبندی کے پیچھے بھی پڑھتا ہوں اور بریلوی کے پیچھے بھی پڑھتا ہوں، لیکن میں اکثر کوشش کرتا ہوں خود پڑھنے کا۔ اچھا، اور مطلب خود ہمارے مجتہد نزدیک بننے کی کوشش کرتے ہو؟ نہیں، میں دیوبندی کے پیچھے آپ کیا کو سوچ کہنا کے چاہ رہا پڑھتے ہوں ہو؟ کہ میں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ان کے عقائد میں حلولی عقائد ہے۔ وہ لوگ کہتے حلولی؟ ہیں اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، حلولی عقیدہ ہے ان کا۔ اب بریلوی کے پیچھے کیا وہ سوچ کے لوگ پڑھتے کہتے ہو؟ ہیں اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اب بریلوی کے پیچھے کیا سوچ کے پڑھتے ہو؟ دیوبندی کے پیچھے پڑھتا ہوں یا پر جو ارے میرا میں کہہ رہا ہوں کہ جب تم کو پتا جو ہے ماں کہ ان باپ کے، ہے، میں کہہ رہا ہوں بھائی تب تم کو پتا ہے کہ ان کے عقائد حلولی ہے تو پھر بھی ان کے پیچھے جاتے ہو؟ یہ سب دکھاوے کے لیے جاتا ہوں، میں ان کے پیچھے کس کو نماز میں دکھاتے ہو؟ کھڑا ضرور ہوتا ہوں، کس کو دکھاتے ہو؟ گھر والوں کو دکھاتے ہو؟ بھائی کس پڑوسیوں کو کو نہیں، دکھاتے ہو؟ کس کو، ہاں ٹھیک ہے، ہاں بھائی، یہ بھائی گھر والوں کو، وہ لوگ کہتے ہیں بار بار مسجد میں جاؤ، تو میں ان کو میرے جو بھائی باتیں جب سمجھانا چاہتا ہوں وہ لوگ نہیں، سنو یہ بات نہیں سمجھتے ہیں۔ جب آپ اپنا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو تو آپ نے حضور کے لیے فیصلہ کر لیا، حضور نور نہیں ہے۔ نہیں بھائی، میں اپنا فیصلہ کر سکتا ہوں بھائی۔ کہاں کر رہے ہو؟ کبھی تو دیوبندی کے پیچھے میں نے جا رہے ہو، کبھی بریلوی کے پیچھے جا رہے ہو، کبھی قادیانی کے پیچھے جا رہے ہو۔ بھائی سنیے، پہلے میری بات سنیے۔ یہ کوئی میرا کہنے بازار کا کا مطلب سودا ہے، تھوڑی ہے کہ جہاں سستا ملے کپڑا وہاں سے خرید بھائی لیا۔ نہیں بھائی، آپ پہلے میری بات سنیے۔ میں آپ میں کی بات کہنا سن چاہ رہا رہا ہوں ہوں، بولیے۔ جو علماء دیوبند ہے، جو علماء دیوبند کا اصل نظریات ہے ان کو فالو کرتا ہے، وہ لوگوں کو میں اہل سنت کی تو مخالفت نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ علماء دیوبند کے جو اچھے عقائد ہیں ان کو فالو کرتے ہو تو ان کو کیا قبر سے نکال کے امام بنا کے نماز نہیں، پڑھتے ہو؟ اصل نظریت، ارے تو بھائی وہ تو مر کے اصل مٹی میں نظریت مل گئے، تو ابھی تو نماز تم کس کے پیچھے پڑھ رہے ہو؟ نہیں بھائی، وہ ان کا عقائد یہ نہیں ہے۔ میں ان سے حیات النبی کی اس موضوعات پہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، میں 100 دفعہ اسے ارے پوچھ چکا ہوں۔ میرے بھائی، ان کا وہی ہے علماء دیوبند تو مر کے مٹی میں مل گئے، تو ان بھائی، کو قبر سے اٹھا کے امام بناتے ہو؟ او بھائی،
हमारे मुल्क में जो उलमाए देवबंद का उलमा है, मैं उन लोगों से सवालात करता हूँ, उन उन लोगों के मुंह से उन लोगों का अकायद सुनता हूँ भाई। वो सुन के मैं फिर फैसला करता हूँ उनके पीछे नमाज पढ़ा जा सकता है या फिर नहीं। मतलब उसके पहले बाद फैसला पहले करता हूँ उलमाए भाई। देवबंद की अकायद को सुनते हो, तकरीर सुनते हो, फिर नमाज पढ़ने का डिसाइड करते हो। ठीक ठीक। तो उलमाए देवबंद तो भाई सारी मेजोरिटी एक है ना, अब उसका अकायद अगर अलग है तो नहीं पढ़ाई तो उसने वहीं से की नहीं ना। नहीं भाई, सारे मेजोरिटी एक नहीं है। उलमाए देवबंद अच्छा, का तो उलमाए देवबंद एक की सारी जमात है। मेजोरिटी एक नहीं है? नहीं, ये मतलब सरासर एक एक झूठ एक है एक एक चक्की के आटा से आटा बनाओगे और तरह तरह की रोटी बना दोगे तो वो भाई। उस आटे को अलग कर दोगे तुम। भाई, भाई सुनो, हाँ आपको सुनाओ। भाई उलमाए देवबंद का पहले असल अपना इतिहास के डिसाइड बारे कर लो में। यार मेरे भाई, सुनो। बंद करियो थोड़ा। पहले अपना डिसाइड कर लो भाई, उसके बाद हुजूर के बारे में तुम बोलो कि हुजूर नूर है या नहीं। पहले तुमको अपना डिसाइड नहीं मालूम है। कितनी उम्र है तुम्हारी? भाई मैं अपना तारुफ कर रहा हूँ, मैं शाफी हूँ और अकीदा में इमाम शाफी? अहमद अभी बिन तो तुम हम्बल का इत्तेबा करता हूँ। अब शाफी, शाफी, हाँ। कभी और हम्बल का अकीदा इत्तेबा में कर रहे इमाम हो, अहमद कभी बिन हम्बल का शाफी बन इत्तेबा रहे हो। करता हूँ। अरे भाई तुम तो बड़ा भाई कंफ्यूज हो। आपको अशारी मात्र भाई आपको सिफात की अकीदा का अगर इल्म ना हो, मैं आपको ये इनबॉक्स में समझाऊंगा अच्छी तरह से। अच्छा, अकायद में अहले सुन्नत की 3 नस्लियत है, अशारी है, मातुरिदी है और मतलब असारी है। जो मतलब असारी जो आप हमें असारी है समझाएंगे? भाई, चले अपने आप चले चले मैं आपसे इमाम थोड़ा उस्मान एक साबुनी की कुतुब पढ़ी। सुनो भाई, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ। जरा जरा मुझे बताओ तो, ईमान किसको कहते हैं? ईमान मुकम्मल कब होता है? थोड़ा समझाओ तो। भाई है कि मैं आपको ईमान मुकम्मल का बात में, लेकिन इसमें ईमान भी है क्या? इख्तिलाफात है। ईमान मुकम्मल कब होता है? बस इतने दो चीज बता दो मुझे। और यहाँ पर भी इख्तिलाफात है। अगर मैं आपको इख्तिलाफात के बारे में सवाल लाफल करता हूँ मिलाकुल। तो ईमान आप क्या है और ईमान मुकम्मल कब होता है, इसमें इख्तिलाफ साबित कर दो तो अभी 1000 रुपए दूंगा तुमको इनाम में। भाई मैं कह रहा हूँ ईमान का जो हाँ, मतलब होता है भाई, ईमान का जो मतलब नहीं मतलब पूछ रहा हूँ होता है, मैं, उस ईमान है मतलब में क्या? इख्तिलाफात है। ईमान है क्या? ईमान है क्या? भाई ईमान का मतलब, अरे मेरे भाई तुम ईमान वाले हो ना? ईमान वाला हूँ मैं। तो ईमान है क्या? तुम ईमान वाले कैसे बने? अल्लाह को मानकर, रसूल को मानकर और उनके जो जरूरियत दीन है, जो दीन के लिए जरूरी है, इन सब चीज को मानकर मैं मोमिन हूँ। सब मोमिन? एक जो मिनट, सब कोई चीज शख्स, एक मिनट, सब चीज को अपने आप मान लिए, किससे माने? अरे भाई रसूलुल्लाह, इमाम अबू रसूल? हनीफा ने ईमान का तारुफ कैसे किया, आप मुझे ये बताइए। अभी इमाम तो अबू तुम कह रहे हनीफा हो ने मैं ईमान का शाफई तारुफ कैसे हूँ, किया। कभी कहते हो हम्बली हूँ, अभी इमाम अबू हनीफा से पूछ रहे हो। इमाम अबू हनीफा को अभी छोड़िए आप, तो भाई अपनी बात आप तो करिए। आप तो हनफी मुकल्लिद है भाई। मैं हम आपको कह मुकल्लिद? रहा हूँ अरे इमाम मेरे अबू भाई, हनीफा ने ईमान का तारुफ कैसे किया, आप ये बताइए। भाई साहब अबू हनीफा हम ने ईमान ईमान का भाई तारुफ साहब कैसे किया, ये भाई बताइए। साहब भाई रसूलुल्लाह साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुतवातिर तौर से साबित है, उन सब पर ईमान लाजिम है, उन सब पर। भाई साहब हम हाँ इमाम बताइए। अबू हनीफा की मुकल्लिद हैं, मसाइल में, अकायद में नहीं। अकायद में आप मुकल्लिद जारी, बन ही नहीं ठीक सकते है। किसी के। हाँ भाई, आप तो भाई अकायद में भाई किसी अकायद में ईमान आप कैसे बन जाएंगे? क्या ईमान का इमाम अबू मुकल्लिद नहीं हनीफा के पास अकायद की सारी है। हदीसें पहुंच गई? ये बताओ। अबू हनीफा के पास तो भाई सिर्फ अकायद नहीं, किसी मसले की भाई बहुत ही आदमी के पास नहीं पहुंची है भाई, ये ठीक है। और किसी सुनिए मुहद्दिसीन सुनिए के सुनिए पास भाई, सुनिए भाई। किसी मुहद्दिसीन के पास ईमान का, सुनो मेरी बात, किसी मुहद्दिसीन के पास अकायद की मुकम्मल हदीस नहीं पहुंची है, मसाइल की पहुंची है, तो मसाइल में तकलीद की जाती सुनिए सुनिए भाई, आप है। सुनिए भाई, हैं? सुनिए भाई, सुनिए भाई। हजार साल से आइम्मा ने अकायद के एक नहीं दो नहीं भाई, 100 भाई बहुत सारी कुतुब लिखी है भाई। उन अरे मैं सारे कुतुब तुमसे में तुम्हारा पूछ रहा हूँ, तुम इधर उलमा उधर ने भाग जिक्र रहे हो। किया है। अरे तुम अपना बताओ ना यार, ईमान मुकम्मल कैसे होता है, ईमान की तारीफ क्या है? वो तुम सारी बातें छोड़ो, अपना अच्छा बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं सीधे अल्फाज से बताता हूँ। हाँ, जो हदीस पढ़ रसूलुल्लाह दो। सल्लल्लाहु अलैहि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतवातिर तौर पे साबित है, उस सब पर ईमान लाना कहाँ लिखा है? हदीस पढ़ दो, है। हदीस पढ़ दो। ये भाई हदीस नहीं है भाई, तो अपने मन से। ये भाई हदीस नहीं, कुरान का आयत है। हाँ
अपने मन से दाल बाटी चूरमा है क्या, जो मर्जी बना के खा लो? दीन है ये, मजाक थोड़ी है। अरे भाई जो मैंने कब जो मर्जी बनाया, ये किसका उसूल आप तुमने मेरे सामने पेश किया कि ईमान के हुजूर तारुफ में अलैहिस्सलाम आप से? अइम्मा का कॉल को भाई आपको नहीं क्यों नहीं पता भाई? अरे आप भाई, मुझे सबसे पहली पहले ये बात तो बताइए, कुरान के ईमान की अंदर खुद तारुफ में मौजूद है फुकहा ने कैसे ईमान किया? की। है, हेलो, ईमान मुकम्मल कब होता है, मैं सुन रहा ईमान हूँ, की तारीफ क्या, बोलिए बताओ ना बोलिए। भाई। अबू हनीफा ने जो किया, अबू हनीफा ने जो तारुफ किया वो मेरा तारुफ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तो बहुत कुछ किया, तो वो सब पे अमल करोगे? भाई इमाम अबू हनीफा ने सिर्फ ईमान का तारुफ ऐसे किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतवातिर तौर पे साबित है, उन सब पर ईमान लाजिम है। अरे तो ऐसे मुकम्मल कब होता है ईमान, वो पूछ रहा हूँ मैं। जो कुछ जरूरियत दीन होता है अरे ईमान उन सब मुकम्मल पर। कब होता है मेरे भाई? ये तो तुम तारीफ कर रहे इमाम अबू हनीफा, चलो तुमने इमाम अबू हनीफा को कॉपी कर दिया। इमाम अबू हनीफा ने ये बताया कि मुकम्मल कब होता है, या मेरे नबी ने बताया हदीस में कि ईमान मुकम्मल जब तक नहीं होगा जब तक ये काम नहीं करोगे? क्या काम है वो? हजरत उमर ये फारूक तो को क्या तालीम दी मेरे नबी ने? क्या उमर, जब तक तुम ये काम नहीं करोगे तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। वो बता भाई दो। इस मौजूद पे बहुत सारे भाई अरे सुनिए भाई, ओ इस भाई मौजूद सुनो, पे ओ बहुत भाई सारे ओ हदीस भाई है। ओ भाई, तुमको नहीं हाँ, पता है तो सीधा बोलो ना, मेरे को नहीं पता है। मुझे पता है, मुझे पता तो है, मुझे पता है तो पता मुंह है। से बोलो ना, रसूलुल्लाह इतनी देर सल्लल्लाहु से अलैहि क्यों टाइम वसल्लम पास कर रहे हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ओके ओके बोलता हूँ हाँ। भाई, रसूल भाई बोलता हूँ भाई, बोलने दो भाई मुझे भाई। भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हे उमर, जब तुम सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करोगे तब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। भाई ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलो ने वाज़ेह तौर पे माशाल्लाह, बताया है। तो इतनी देर ये से क्या बात पापड़ हमको बेल रहे थे? मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह, तुमने ये चीज को वाजे कर लिया कि सबसे ज्यादा बताया। मेरे नबी से मोहब्बत करने वाले ना बन जाओ। ठीक है, हाँ भाई मैंने जवाब दिया है। हाँ सुनो ना भाई, भाई अगर मैंने तुम, जवाब दिया है। हाँ सुनो ना आपका भाई, अगला सुनो सवाल पूछिए। सुनो सुनो, अगर तुमने हुजूर अलैहिस्सलाम से किसी को फौकियत मर्तबे में मकाम भाई में दे दी तो आवाज आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। भाई आपका आवाज नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा। अब आ रही है आवाज? अब हाँ आ हाँ रही ठीक है? है, आप ठीक है, आप ठीक हाँ, तो है। अगर आपने हुजूर अलैहिस्सलाम से किसी का मर्तबा बड़ा कर दिया, या अल्लाह के अलावा किसी के मकाम को बढ़ा दिया, या किसी का मर्तबा इशारत उन्नस या दलालत उन्नस में बढ़ा दिया, तो आपकी मोहब्बत खोखली है, यानी आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। बराबर? हाँ बराबर ठीक है। तो अब आपने ये क्या, मेरे नबी अलैहिस्सलाम नूर नहीं है, ठीक है? नहीं नून नहीं है, नहीं नून नहीं है। हाँ, अगर हम ये कहें कि रसूलुल्लाह जो सल्लल्लाहु हुजूर अलैहि के, वसल्लम की बात करना है। सुनो सुनो, अब अगर हम ये बताइए। कहें कि जो हुजूर के नूर का इनकार करे वो भी काफिर है, और अगर कोई हुजूर के बशरियत का इनकार करे वो भी काफिर है। यानी अगर हम लेकिन ये आला कहें कि, हजरत के फतवा सुनो ना भाई, सुनो ना, लेकिन आला हजरत के फतवा पे जो है। सुनो हाँ ना भाई, बताइए। सुनो ना, हाँ भाई बताइए बताइए बताइए। अगर हम ये कहें कि हुजूर नूर भी है और बशर भी है, यानी हुजूर की असल नूर है और बशरियत का लिबादा ओढ़े हुए आए, अगर हम ये अकीदा आपके सामने रखें तो हम पे हुक्म क्या लाजिम आएगा? ये अकीदा ठीक है बहुत हाँ ठीक है। ये अकीदा ठीक है, तो फिर हमारा अकीदा तो यही है ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम बशरियत का लिबादा ओढ़े आए और असल उनकी नूर है। लेकिन मेरा असल सवाल ये नहीं है। अब सुनो मेरा ना, असल सवाल तो है। सुनो तो, हाँ बताइए। सुनो, हाँ बताइए। तो इस ये दावे पे मेरी दलील तो ले लो। अल्लाह के रसूल से सहाबी हाँ इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह आप कब से नबी हैं? आपने फरमाया जब आदम बताइए। अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। ठीक है, हाँ, मैं जब से फिर नबी हूँ, बताइए। तो जब हम तो से हदीस नबी, मानते हैं। हाँ जब से नबी हूँ, तो मिट्टी और पानी के दरमियान थे, तो मेरे नबी क्या थे उस टाइम? बशर थे या क्या थे उस टाइम? भाई
मैं अब यहाँ पर शिव आपने हंसो बाद इम्मा में, का अकवाल हंसो नहीं बाद पढ़ा। में, पहले जवाब रसूलुल्लाह दो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम अरवाह में थे, आलम अरवाह में थे जब आदम का ईसा अलैहिस्सलाम किसी का जिस्म मुबारक नहीं हुआ है। अरे मैं वो पूछ रहा रसूलुल्लाह हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम आदम, मैं पूछ रहा हूँ आलम अरवाह थे, ये कहाँ पढ़ा आपने? इम्मा ने कहाँ इमाम ने, कौन सी किताब? हवाला पेश करो। इमाम गजाली है, इमाम तकीयुद्दीन सुबुकी है। मैं आपको मुझे इंबॉक्स इसका में पेश इसका भी करूंगा, जवाब ठीक है? दे देना कि आलम अरवाह में रूह किसकी और कौन सी रहती है? क्या नबी ये अलैहिस्सलाम आलम अरवाह में थे? ओके सुनिए, यहाँ पर सिर्फ उलमा का नहीं, उलमा साहबी ताबी अरे सबका मुझे इजमा है हवाला जो पेश रूह करो है। कि हुजूर आलम अरवाह में थे। ओके भाई, मैं बता रहा हूँ ना हाँ भाई, पेश करो। सुनो मेरी बात सुनो। किताब का नाम बताओ। भाई यूसुफ तो बता रहा हूँ भाई। कौन सी यूसुफ? सॉरी और किताब का नाम, ठीक है? हाँ किताब का नाम बताओ, कौन सी किताब में तुमने पढ़ा, मुसन्निफ कौन है, कौन सी किताब में हवाला लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम उस वक्त आलम अरवाह में थे? अगर तुमने बता दिया, कसम खुदा की अभी 1000 रुपये दूंगा तुम्हें। भाई सुनो झूठ भाई क्यों मेरी बोलते हो बात यार? सुनो। झूठ बोलते शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे भाई मेरी बात सुनो अबे भाई। अगर कोई शख्स ये कह दे कि हुजूर आलम अरवाह में थे, काफिर है वो, समझा? नाउज़ुबिल्लाह मिन नौज ज़ालिक। बिल्ला मिन जालिक। हुजूर अलैहिस्सलाम आलम अरवाह में आम लोगों की रूह है, नबियों की रूह नहीं है। नबियों भाई से भाई वादा भाई लिया गया भाई है। भाई 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 आलम अरवाह में सिर्फ हमारी रूह नहीं है, सारे तो अंबिया और तमाम औलिया की रूह भी है। साबित करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आलम अरवाह में अरे साबित कर एक बे, चमकते हवाला हुए नूर पेश को कर, देखा। हवाला पेश कर, अपनी मंतिक भाई मत चलाओ। भाई मैं आपको हदीस तो बता रहा हूँ। हाँ हजरत आदम ने, और ये दलील आप लोगों को भी है, मैंने, कौन सी किताब में? ठीक है, मैं बताता हूँ भाई, अब याद नहीं किया। कौन सी किताब में? अबे ये जो कुरान के मोहम्मद अंदर, ईसा ने, कुरान के भाई अंदर भाई आयत भाई मौजूद है। भाई सुनो भाई सुनो, कुरान के अंदर आयत मौजूद भाई है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 81 के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है, और याद करो जब तमाम अंबिया से अहद लिया गया। अहद कहाँ लिया जा रहा है? अभी आलम दुनिया अरवाह में। बनी भी नहीं, आलम अरवाह में अहद लिया जा रहा है। ठीक है, आलम अरवाह में हाँ, अहद लिया, अभी दुनिया बनी भी नहीं है। नहीं बनी है। तो अल्लाह ने जो अहद लिया तो उनकी रूहों से लिया था या जिस्म के तौर पे लिया था, जिस्मानी तौर से? रूह से लिया रूह था से। क्या लिया था अहद? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह का रूबियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का। हाँ और तो शिया अब कुतुब में है अलैहिस्सलाम का। हाँ तो अब तो आप मुझे ये बता दीजिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम आलम अरवाह में थे जब आदम अलैहिस्सलाम और पानी और मिट्टी के दरमियान थे। तब वो किस सूरत में थी, यही तो आपका सवाल। मैं तो आपसे पूछा, मैं तो पढ़ के बैठा हूँ ना, मुझे क्यों सुना रहे हो? आप बताओ। भाई मैं तो वही कह रहा हूँ भाई, इसमें सहाबा ताबी और उलमा का इजमा है। रूह जो होता है, अरे रूह जो होती है आम, यहाँ पे नबी की रूह भाई आलम सुनिए तो अरवाह भाई में। मेरी सुनो बात। सुनो भाई सुनो, यहाँ बात क्या हो रही है हाँ भाई सुनो। कि हुजूर तुमने क्या बोला? अभी झूठ बोला कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जब ये हदीस आई कि आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे, जब से मैं नबी हूँ, तुमने कहा वो आलम अरवाह में थे। तो किस मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने ये लिखा कि हुजूर की रूह आलम अरवाह में थी उस वक्त? वो हवाला पेश करो। भाई सुनिए, फिर सुनिए जो सुनिए। चीज नॉर्मल है, तुम सारी भाई रूह सुनिए भाई मेरी बात। हुजूर की रूह पहले से क्यों मिला रहे हो भाई? मैं पूछ रहा हूँ, तुमने जो झूठ बोला अभी, पहले तौबा करो इस पर। तो भाई तौबा करो, तुमने झूठ बोला ना। तुमने पर सारी रूह, तुमने कहा सारी रूह वहीं रहती है, अंबिया की सुनिए भी, तो औलिया की मेरी बात। भी, आम इंसान की भी रूह आलम अरवाह में रहती भाई है। अरे आलम अरवाह के कितने मकाम है, कितने जुज है, तुमको पता है? भाई मैं पूरे आलम अरवाह की बात पूरे ही कर रहा हूँ आलम भाई। अरे तो पूरा आलम अरवाह एक थोड़ी है। आप सुनिए भाई, जन्नत का तो इस मकाम होता है, मकाम की या अब ऐसे तो एक हदीस मिलती है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह यहाँ पर एक सितारा चमकता था, मेरी उम्र इतनी है, मैंने उसको इतनी बार देखा।
ये हदीस मौजू है, इसका आप ये हदीस कहीं पर मौजू भी किसी का, सुनो सुनो, सही सनद के हुजूर साथ, की भाई फजीलत भाई में, सुनो भाई, अरे अभी सही अभी सनद के मुहद्दिसीन साथ का नहीं कॉल, बता देते। सुन 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 सुन, अभी मुहद्दिसीन का कॉल पेश कर रहा था। बोलो भाई बोलो। तुमको ये नहीं पता कि हुजूर की फजीलत में ज़ईफ और मौजू हदीस भी काबिल कबूल होती है? कहाँ से पढ़ के आए हो तुम? भाई हाँ भाई, ये हदीस तो भाई ये मुहद्दिस ने हदीस किसने कबूल नहीं सही किया भाई, बताया? किस ये मुहद्दिस हदीस ने को भाई? किसने सही बताया कि काबिल कबूल नहीं है? एक का नाम भाई बताओ चलो। नहीं भाई, किसने नहीं बताया, लेकिन नहीं इस बताया तो हदीस अपनी का तरफ कोई से सनद तुमने नहीं कैसे है बोल दिया? एक मिनट, भाई। जब किसी मुहद्दिसीन ने नहीं भाई बताया, सब सुनो सुनो, किसी मुहद्दिसीन हाँ ने ये नहीं हाँ सिखाया बताइए। कि इस हदीस को अमल में नहीं लिया जाएगा, किसी मुहद्दिसीन ने ये नहीं बताया कि इस हदीस को मौजू समझा जाएगा, ज़ईफ समझा जाएगा, काबिल कबूल नहीं है, तुमने अपनी तरफ से कैसे बोल दिया? मुहद्दिसीन से बड़े हो तुम, भाई वो लोग उसूल तो छोड़ गया ना, तुम्हारे उसूल अपने जेब उन में उसूल रखो के ना, मुताबिक बोल तुम्हारे रहा हूँ। उसूल से शरीयत चलेगी क्या भाई? भाई मेरे उसूल नहीं भाई, मुहद्दिस के उसूल। भाई मुहद्दिसीन के मुहद्दिस उसूल के के अंदर तो दिखाओ भाई मुझे कि किसी ने उसूल। कहा हो कि ये हदीस ज़ईफ है, हम नहीं लेंगे इसको, काबिल कबूल नहीं है, एक का नाम बताओ चलो। अरे भाई उसूल, भाई उसूल और अकवाल तो भाई एक नहीं है भाई। अरे आपको आप भाई अकवाल कोई अपने ये पास बात रखो, समझते भाई, मैं ये कह भाई रहा हूँ उसूल इस हदीस हदीस है पर भाई। किसी एक मुहद्दिसीन का कॉल दिखा दो कि ये हदीस जो है भाई आप ज़ईफ है, मौजू है, किसी के काबिल कबूल नहीं है, चलो बताओ किसने बोला? ओके भाई, मैं पहले ये मैं पहले तुमने देखो 4 झूठ बोले, एक हदीस 4 कहूंगा, झूठ तुम बोल लेकिन चुके हो अभी तक। मैंने एक भी झूठ नहीं बोला, मैंने एक भी पहला झूठ झूठ नहीं तुमने बोला। ये बोला मैंने कि आपसे अंबिया हदीस का की, सनद औलिया मांगा है की, भाई, सुनो सुनो जिस हदीस का कोई सुनो सनद सुनो नहीं है भाई। सुनो आप सुनो बेसनद तो भाई आप देखो सुनो सुन लो, सुनो पहले सुनो बात सुनो सुन लो, सुनो, क्या बात है, फिर तुम्हें मौका मिलेगा पहला बोलने झूठ का। तुमने अभी बोला, खामोश। पहला झूठ तुमने बोला कि आलम अरवाह में थे हुजूर की उस वक्त रूह जब ये हदीस आई थी, इसने तो पहला भाई झूठ बोला। आलम अरवाह दूसरा में झूठ नहीं इसने है भाई, बोला, दूसरा झूठ इसने इसके बोला। मुताबिक। 4 झूठ तुम बोल चुके हो, चलो आगे बोलो, अब क्या भाई तुम्हारा मैंने क्या झूठ नहीं मसला अभी क्या बोला सुन है भाई, लो आप बताओ। मेरी बात यूसुफ, समझ नहीं रहे हो भाई आप हदीस की सनद तो भाई सही सनद तो भाई, जिस तरह से आप अरे मेरे भाई तुम्हारी भाई सनद आप तुम हदीस सुनो, जब मुहद्दिसीन का इस पर इजमा हो गया, मुफस्सिरीन का इजमा हो गया कि हुजूर की फजीलत पर मौजू और ज़ईफ हदीस भी काबिल कबूल है, बहुत सी हदीसें, मौजू कबूल नहीं है भाई, मौजू हदीस अरे कबूल नहीं तुम्हारे है, कहने से ये होता है क्या? जाली किसने हदीस है, बोला नहीं है जाली हदीस। कबूल? किसने बोला ये हदीस काबिल कबूल नहीं? भाई किसने बोला? एक का नाम बताओ। भाई आप मुझे रेफरेंस दो भाई, मैं कह रहा हूँ आप 1000 मुझे रुपए का रेफरेंस दो इनाम अभी दूंगा, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि हुजूर की ये भाई, आप हदीस मुझे काबिल रेफरेंस दो कबूल भाई, नहीं, किसी मौजू हदीस मुहद्दिसीन भाई, ने कहा है मौजू हदीस बस। कबूल है भाई, आप मुझे क्या? भाई भाई आप मुझे रेफरेंस दो, मौजू हदीस कबूल है, अरे इस मौजू फजीलत में, इस हवाले में आप मुझे रेफरेंस दो। सुनो सुनो सुनो, मौजू की तारीफ करो पहले। आप बताइए भाई मौजू की तारीफ, भाई मौजू आपको नहीं किसको पता भाई? कहते हैं? अरे मौजू किसको कहते हैं? भाई जो मनकर हदीस होता है वो, जो मनकर हदीस, मौजू किसको कहते हैं? भाई बता रहा हूँ तो भाई, हाँ जो बताओ। मनकर हदीस होता है, जो मनकरा, जो मनगढ़ंत जो होती मनकर है हदीस मौजू है। होता है एकदम। अच्छा, तो अब इसमें ये बता दो कौन सा रावी मनगढ़ंत है इस हदीस भाई में? इसके कौन लिए सा तो मुझे रावी भाई, है जो मनगढ़ंत है? उसका नाम बता दो चलो। आप इन रावियों की इस हदीस तस्दीकात मेरी पेश बात कीजिए। सुनो, बात सुनो, बात सुनो। इस हदीस पर हाँ बताइए मुहद्दिसीन, बताइए। इस हदीस पर मुहद्दिसीन का इजमा हुआ और हर मुहद्दिस अपनी किताबों में लेके इस हदीस को आए, तो किसी मुहद्दिसीन ने ये लिखा हो कि इसमें ये रावी भाई मौजू हदीस है, को लाने का ये मतलब तो रावी ये नहीं है मौजू भाई है, उन काबिल लोगों ने कबूल कबूल नहीं किया है, है भाई। ये बताओ। अरे अरे भाई हदीस जिसको भाई किताब में है लाने का मतलब तो ये नहीं है अरे तो उन तेरा लोगों ने मतलब थोड़ी इस चलेगा हदीस को भाई, कबूल तू किया है। कौन है दीन में, शरीयत में? तेरा उसूल है क्या? तू क्या मुफ्ती आलिम है? कौन है तू, तेरी बात को मैं मान लूं? भाई आपको तू मुझको बता भाई, तो सुन भाई मेरी बात सुन, इल्म उसूल हदीस का मेरी नहीं है बात भाई, मेरी आप बात पहले मेरी उसूल बात हदीस समझिए मेरी बात भाई। सुनो, तुमने कहा ये हाँ हदीस हाँ मौजू हाँ है, बताइए भाई, मौजू हदीस जिस हदीस काबिल का भाई कबूल सनद नहीं है। नहीं है भाई, आपको कौन हदीस है भाई? मैं क्या पूछ रहा भाई हूँ, जिस हदीस तुमने का क्या सनद नहीं है बोला? भाई, आप कौन हदीस से भाई फजीलत? तो तुमको क्या भाई हक जिस बना इस हदीस का हदीस को सनद मौजू नहीं है भाई। कहने का जब मुहद्दिसीन ने नहीं कहा? तो भाई मुहद्दिसीन जिस ने हदीस का भाई सनद नहीं है भाई, मुहद्दिसीन ने ये वो नहीं हदीस तो कहा भाई कि ये क्या हदीस कहोगे भाई? काबिल कबूल नहीं है, तो तुम्हारी क्या औकात हो गई? तुमने कैसे बोल दिया ये हदीस में काबिल कबूल नहीं है? कहाँ पढ़ा तुमने? भाई उन तुम्हारे लोगों हंसने से नहीं होगा, भाई तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, भाई तुमने भाई मुहद्दिसीन पर झूठ बोला है। अब ये तुम्हारा 5वां झूठ भाई हो जिस गया। हदीस के भाई सनद नहीं है भाई, उसको भाई मैं क्या कहूँ भाई? शेख अब्दुल्लाह इब्न सिद्दीक अल गुमारी, आप
आप उनको पहचानते हो? अरे मैं वो इस कौन हदीस है की बताइए बात तो? कर रहा हूँ। इस हदीस को किसने कहा हाँ कि ये भाई, इस मौजू हदीस हदीस की है, भाई, हम इस इसको हदीस की काबिल भाई। कबूल नहीं है? हाँ भाई, हाँ भाई, इस हदीस की। हाँ भाई, इस हाँ हदीस बताओ। की। आप क्या सैयद अब्दुल्ला सैयद सैयद क्या अब्दुल्ला इब्न सिद्दीक अल गुमारी को पहचानते हो? ये कौन है? सैयद अब्दुल्ला इब्न सिद्दीक अल गुमारी। ये हदीस कौन लेके आए पहले ये बताओ। ये हदीस, ये जब हदीस आया है, ये शायद मुस्नद अहमद में आया है। और अरे इमाम सुनो, अदब अल मुस्तदरक यानी हाँ इमाम, बताइए। हाँ हाँ, बोलो बोलो सुन रहा हूँ। अरे भाई मुस्तदरक। इमाम हाकिम लेके आए ना इस हदीस को। हाँ हाँ हाँ, तो यही कह रहा इमाम हूँ, हाकिम ने मुस्तदरक। तुमको, इमाम हाकिम लेकर के आए, उनकी अपनी तहकीक है, तो उन्होंने ये लिखा है अपनी इमाम हाकिम में कि ये हदीस मौजू है, काबिल कबूल नहीं है। भाई आप भाई मुझे ये बताइए भाई, सब मैं क्या हदीस की पूछ रहा हूँ, मैं क्या मीटिंग पूछ रहा क्या हूँ, मैं क्या इमाम पूछ का रहा राय हूँ, होता है भाई? मैं क्या पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं देखो नहीं नहीं, सुनो दोनों सुनो नहीं, नहीं सुनो पता, सुनो नहीं सुनो पता। सुनो, अगर मैं मैं भी तुम्हें सही बुखारी की हदीसें पेश करूँ ना, कि जिन जिन रावियों को दिगर मुहद्दिसीन ने झूठा और फरेबी बताया है, उस रावियों से इमाम बुखारी अपनी सही हदीसों में, सही बुखारी में कई हदीसें लेके आए, तो तुम क्या मानोगे नहीं मानोगे सही हदीसों को? नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे? अच्छा, तो ना मानने की क्या दलील होगी? वो तो सही बुखारी में है। भाई सही बुखारी में होने का मतलब तो यही नहीं, रसूलुल्लाह भाई सुनिए भाई, सुनिए भाई, भाई सुनिए भाई, सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम मुस्लिम ने सुनो सुनो, इमाम मुस्लिम ने 17 हदीसों पर जरा की है इमाम बुखारी की, भाई। और जबकि वो सही बुखारी में वैसे है। मैं तो भाई वही तो बता रहा हूँ भाई, मैंने तो वही बता रहा हूँ तो भाई। जरा की रसूलुल्लाह हुई हदीस सल्लल्लाहु, को सही बुखारी में तुम मान रहे हो, है ना? अरे भाई मैं और इस पर कोई जरा नहीं है, उस भाई पर तुम मैंने उंगली उठा रहे भाई हो। मैंने किया भाई। हाँ। कहाँ से पढ़ के आए हो? भाई जिस हदीस पे भाई, मदरसे के पीछे जिस पढ़े हो हदीस या पे भाई आगे? जरा नहीं है भाई, सब हदीस भाई, सब हदीस पे तो भाई जरा नहीं होता भाई। अरे मैं कह मैं रहा हूँ आपको 17 ऐसे भाई बहुत हदीसों सारी पर, हदीसें दे सकता सुनो हूँ भाई, जिस सुनो हदीस पे भाई कोई भाई जरा सुनो भी सुनो नहीं है, कोई तहकीकात भी नहीं है सुनो भाई। सुनो सुनो, भाई इमाम सब बुखारी, हदीस पकड़ पकड़ के तो मुहद्दिसों ने अरे नहीं बात नहीं सुनो, अरे बात अफवाह नहीं सुनो, फरमाया। ओ हाँ मौखिक हाँ, साहब बताइए सुनो। बताइए। इमाम बुखारी अपनी सही बुखारी में गालिबन 60 से 70 हदीसें ऐसी लेकर के आए हैं कि यहाँ पर जिनके इमाम जिन इब्न जौजी का रावियों भी से, राय है भाई, ठीक है, मैं जानता हूँ। जिन रावियों से दिगर मुहद्दिसीन ने हदीस लेने से इनकार कर दिया, हाँ भाई, तो फिर भी इमाम तुम उसको मान रहे इब्न हो, जौजी ने, फिर भी उसको मान रहे हो तुम? नहीं भाई मैं नहीं मान रहा हूँ भाई। नहीं मान रहे? मैं भाई, तो इमाम अरे बुखारी भाई की, मैं सनद इमाम देख बुखारी सकता हूँ की, भाई, सुनो इमाम भाई, सुनो बुखारी भाई। की, इमाम बुखारी की ये हदीस तुम नहीं मानोगे? नहीं भाई, मतलब सब सही हदीस मैं, बुखारी में जो सही हदीस है नहीं मानोगे? नहीं 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 नहीं, सब सब नहीं मानता। चलो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि लिख वसल्लम करके दे सूचक दो, करना चाहते लिख करके दे हैं दो, ये तुम बात। 67 68 हदीसों को नहीं मानोगे, लिख करके दे दो मुझे, सही बुखारी में है वो। फिर मैं हदीसें पेश करता हूँ, अगर तुमने उस पर अमल किया तो फिर जुतिया ही जाओगे बढ़िया से तुम। भाई आप भैया पहले मेरी बात सुनिए, आप पहले लिख मेरी बात करके दे सुनिए, दो, पहले आप लिख लिख मेरी के बात दे करके दो, सुनिए भाई, मुझे दे सुनिए मुझे दो भाई, कि आपसे वो पहले लिख 68 करके हदीसें तुम नहीं ये मानोगे भाई जिस मुझे पर बोलने दिगर दीजिए, मुहद्दिसीन ने उस भाई रावी से मुझे हदीस बोलने लेने से दीजिए मना भाई, किया। अरे भाई मुझे बोलने दीजिए ना भाई। हाँ बोले। आप मुझे पहले बताइए, हसन हदीस किसको कहते हैं? हसन हदीस, हाँ जिस हदीस के अंदर कोई कोई कमी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, किसी ने उस पर जरा ना की हो। नाउजुबिल्लाह। नौज़ुबिल्लाह। ठीक है, अब सुनिए की रकम क्या पहले है? मेरे सवाल का भाई, जवाब सुनिए दो। भाई, सुनिए 68 हदीस मैं भाई, तुमको सुनिए दे रहा भाई। हूँ, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। 68 हदीस सही बुखारी की मैं तुमको दे रहा हूँ, और उस हाँ रावी से दिगर मुहद्दिसीन ने हदीस लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, तो तुम उस 68 हदीसों को मानोगे या नहीं मानोगे? लिख करके दो मुझे। भाई ऐसे भाई बहुत सारे रावी हैं जिस पर एक अपनी जमात बारी के आई तो कड़वा कड़वा तू मीठा भाई मीठा सुनिए आप। भाई, भाई मेरी बात सुनिए भाई, हाँ, सुनाइए। भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम्म। ऐसे भाई बहुत सारे रावी है जिस पर एक तो जमात फिर के अब इसका फैसला सुनो, अब इसका फैसला मुहद्दिसीन करेंगे ना बाबू, तुम नहीं करोगे। नहीं भाई, तो मुहद्दिसीन अरे ने भाई कहाँ रावी के अंदर फरमाया भाई कि ये इख्तिलाफात होते हैं हदीस भाई, जो हुजूर की फजीलत में रावी आई के है? तस्दीकात के अंदर भाई सुनना है इख्तिलाफात बाबू, होते हैं भाई। ए बाबू सुनो, भाई भाई अब तुम भाई 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 सुनो सुनो, भाई रावी के, भाई सुने भाई, भाई रावी के तस्दीकात के अंदर भाई इख्तिलाफात होती है भाई, एक अरे तो जमात वो के तुम मुहद्दिस, थोड़ी डिसाइड करोगे।
भाई मैं तो डिसाइड नहीं कर रहा हूँ भाई। तो तुम अपनी तरफ से क्यों तुमने जाती फिर राय दी कि हुजूर की जो हदीस है ये मौजू है, ये नहीं मानी जाएगी? ये तो किसने बोला नहीं मानी जाएगी? मुझे एक का नाम तो दो। अरे भाई इसकी सनद नहीं है भाई, इसकी अरे तो सनद नाम नहीं है तो भाई। बताना भाई, किसने बोला नहीं मानूंगा मैं? सैयद अब्दुल्ला इब्न सिद्दीक अल गुमारी ने बोला भाई। तो ये कौन है? भाई आपको अबे जब हदीस भाई लाने वाले इमाम हाकिम है, उन्होंने नहीं कहा तो तू उनको छोड़ के किसी और को पकड़ेगा? हेलो, हाँ हेलो, हेलो भाई आप मुझे भाई पहले उस हदीस की सनद दो भाई। मैं तुमको क्यों आपको- सनद दूंगा? मैं तुम होते कौन हो सनद मांगने वाले मुझसे? सब हदीस पर मुहद्दिसिन का राय नहीं होता भाई। ऐसे भाई बहुत सारे हदीस है भाई, बहुत सारे हदीस है, मैं आपको बहुत अरे सारे दिखा सनद तो सकता हूँ मैं तुमको जहाँ जब पर मुहद्दिस जब का दूंगा, राय नहीं है सुनो, भाई। सनद तो मैं तुमको जब हाँ, देता, बताइए। जब तुम मुझसे मांगते। तुमने तो दावा कर दिया कि वो हदीस काबिल कबूल नहीं है, मौजू है। किसने बोला काबिल कबूल नहीं है? अब दावा तुमने किया तो दलील अरे तुम दोगे ना? अरे भाई उसकी भाई अरे भाई कोई भाई सही मत करो, सनद भाई नहीं है भाई भाई, मत करो। सनद सनद सनद, दावा तुमने किया, दावे में दलील पेश करो। कोई सही सनद नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ भाई कोई सनद नहीं है, कोई सही सनद नहीं है। कुल हाथु मैं तो कह रहा बुरहानुकुम हूँ। इन कुंतुम सादिकीन, तुमने दावा पेश किया कि ये हदीस मौजू है, काबिल कबूल नहीं है। ये दावे में दलील पेश करो, किसने बोला ये बात? ऐसे बहुत सारे हदीस होते हैं अरे जिसके तुम्हारे अंदर कहने से बहुत थोड़ी होगा राय यार, नहीं ऐसे होता भाई। बहुत सारे कर रहे हो। तुम क्या दीन के अरे ठेकेदार हो? उसूल देखिए भाई, उसूल हदीस भाई, आपको उसूल उसूल तुम, हदीस अच्छा, नहीं है भाई। हदीस के कितने उसूल होते हैं? हदीस समझने के कितने उसूल होते हैं? बताओ कितनी तादाद है उसकी? भाई आपने उसूल हदीस भाई कहाँ से पढ़ी है भाई, ये मुझे अरे बताइए तो भाई। तुम यार जहालत दिखा रहे हो ना। तुमने दावा कर दिया, जुबैर भाई इसने दावा किया ना कि हदीस मौजू है, काबिल कबूल नहीं है, तो दावे में भाई दलील मैं जिस दूंगा हदीस क्या? की कोई सनद नहीं है भाई, जिस अरे हदीस तो की तुम कोई दोनों सही कहाँ सनद नहीं नहीं है है भाई, सनद? वो इमाम हदीस हाकिम कैसे ने कबूल कहाँ है भाई। फरमाया कि इस हदीस की कोई सनद नहीं है, इसको नहीं मानी जाएगा? कहाँ फरमाया? बताओ, जल्दी बताओ। इमाम हाकिम का फरमाना जरूरी नहीं है। अच्छा, जरूरी नहीं? तुम्हारा फरमाना जरूरी है? आपको बखूबी मालूम है ना ना, तुम्हारा आपको फरमाना बखूबी मालूम जरूरी है है। इसका भाई कोई सनद नहीं है भाई। आपको अरे तो, बखूबी मालूम है अरे इसका कोई बाबू, सनद नहीं है। अरे मेरे मेरे भाई, आपको तो बखूबी तुम, मालूम है भाई इसका अरे कोई सुनो सनद सुनो, नहीं है। जब इमाम हाँ हाकिम बताइए। ने नहीं फरमाया, जैसे इमाम बुखारी हदीस लेकर के आए, तो इमाम बुखारी ने नहीं फरमाया कि इस हदीस जिससे मैं रावी से हदीस लेके आया हूँ, दिगर मुहद्दिसीन ने इसको मौजू कहा है और इस रावी से हदीस लेने के लिए मना कहा है, लेकिन फिर भी वो सही बुखारी में लिख के चले गए, तुमने मान लिया। तो इमाम हाकिम ने लेकिन जब वो नहीं हदीस फरमाया इमाम तो बुखारी चीज को और तुम क्यों दीगर नहीं मान रहे हो मुहद्दिसीन भाई? के नजदीक लिखा है। हाँ? भाई मैं मैं तो आपको ये बात बकरी की तरह मैं मत करो, हवाला पेश करो। मैं आपको ये बात बहुत पहले से कह रहा हूँ, हाँ, रावी की तस्दीकात के अंदर भी इख्तिलाफात होती है। ये आपको ये डिसाइड कौन बात करेगा? मालूम होनी चाहिए। ये डिसाइड कौन करेगा? मुहद्दिसीन और रिजाल भी। तो मुहद्दिसीन रिजाल मुझे बता दो ना, मुहद्दिसीन और रिजाल से ही तो मांग रहा हूँ कि ये हदीस को मौजू किसने कहा? किसने कहा ये हदीस से काबिल कबूल नहीं है? किसी ने नहीं कहा, लेकिन तो बस इस नहीं हदीस कहा के तो अब अंदर खामोश हो जाओ। अब नहीं कहा तो खामोश हो जाओ। ओके खामोश हो गया। आप खामोश हो जाओ, नहीं तो जुतिया जाओगे। अब अपनी तरफ से जात भी राय मत चलाओ। अब बताओ तुमने नूर के ताल्लुक से क्या बात करनी है? नूर के ताल्लुक से मुझे यही बात कहनी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जिस्म मुबारक है, जो जिस्म मुबारक है वो नूर माना वो नूर से पैदा नहीं है। यही किससे पैदा है? नुत्फा ज़किया और मिट्टी मदीना। तो ये इनकार किसने किया कि हुजूर का जिस्म मुबारक मिट्टी से नहीं बना? मिट्टी से बना है भाई, हाँ, यहाँ पर इजमा है, इजमा इजमा। मैं कह रहा हूँ मिट्टी से ही बना है। मैं भी तो कह रहा हूँ ना। तो फिर इख्तिलाफ किसका है? इख्तिलाफ तो तुम करने आए हो। मैंने कहा जो हुजूर की बशरियत का इनकार करे वो भी काफिर, जो हुजूर की नूरानियत का इनकार करे वो भी काफिर। तुमने कहा मिट्टी से बना है, तो मिट्टी से बनने वाली चीज को नूर नहीं मान सकते, ऐसा? ओ भाई सुनिए सुनिए, हाँ, मिट्टी से ये जो बनी हुई आसान चीज इस्लाम है को ना, नूर नहीं मान सकते, ऐसा? नहीं 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 ऐसा नहीं, तो कैसा नूर हो सकता है। नूर हो सकता है? तो फिर वो क्यों आए हो बात करने मुझसे? ये जो आसान इस्लाम है, हैं? जो आसान इस्लाम है, ये कह रहा है
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बशरियत है वो नूर से पैदा है। अरे तो वो तो सही कह रहा है ना हुजूर, सुनो जो बशरियत है हुजूर की वो तो उनका जिस्म मुबारक। अबे ये मैंने कब कहा? ये छठा झूठ हो गया इसका। अरे ये मैंने मैंने जिस्म कब मुबारक की बात कहा? की अरे है। मैंने कब कहा ये बता। तुमने मुझे इनबॉक्स में बताया है। क्या बात है? एसएस दो, जल्दी दो। भाई सुनिए, जब मैंने बरेली शरीफ की फतवा अरे उसको उनको बोला है मेरी बात सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मिनट में तुम्हारा मैंने 2 मिनट में नकियत से पैदा है, भाई तब भाई सुनो उन्होंने सुनो मुझे बताया है आप डिबेट के सुनो लिए आ सुनो जाए। सुनो सुनो तो फिर मैं क्या समझूं? अरे सुनो, फिर 2 तुम्हें क्या मिनट में समझा तुम्हारा बताइए। खेल 2 मिनट में तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। बस मुझे इतना बता दो कि हुजूर अलैहिस्सलाम अगर मिट्टी से बनाए गए तो वो नूर उनको नूर नहीं कहा जा सकता, या वो नूर नहीं है ऐसा? वो नूर नहीं है। अच्छा वो नूर नहीं है। क्योंकि इमाम मुल्ला अली कारी ने इस नूर को रूह कहा है, रूह कहा है। अरे इस भाई नूर को रूह सुनो कहा सुनो है। सुनो, मुल्ला अली कारी ने ये बताइए। कहा है कि वो नूर नहीं है। नहीं भाई, ये तो तो नहीं फिर कहा। तुमने अपनी तरफ से कैसे बोल दिया? क्या आप रूह को नूर मानते हो? तो तुम्हारे मानने से नहीं होता ना। मुल्ला अली कारी ने ये कहा है कि उनकी रूह जो है नूर नहीं है, वो नूर नहीं है, हुजूर नूर नहीं है। बता रहा हूँ, आप रूह को नूर मानते हो क्या? आप रूह को नूर मानते हो? अभी यहाँ पर अभी यहाँ पे ज़ेरे बहस ये नहीं है। ज़ेरे बहस ये मैं है, आपको बता रहा हूँ, आप रूह को नूर मानते हो कि नहीं? मैं पूछ रहा हूँ मुल्ला अली कारी ने ये कहा कि हुजूर नूर नहीं है, नहीं ये बात नहीं क्या। तो ये दलील तुम्हारी खोखली है, दूसरी दलील पेश करो। मैं यहाँ रैपिडो बाइक कर लूंगा ना अपनी। मैं तो बता रहा हूँ, तुम्हारे बताने से नहीं होता। लाला तुमने कहा मुल्ला अली कारी ने लिखा, नहीं फरमाया। नहीं फरमाया। तुम्हारी दलील खोखली साबित हुई, दूसरी दलील पेश करो। किसने फरमाया हुजूर नूर नहीं है? किसी ने नहीं फरमाया। तो अपनी तरफ से कैसे बोल दिया तुमने? तो अब बताइए, तो किस मुहद्दिसिन ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है? भाई नूर से अब ये बताइए। कुरान की आयत नहीं पढ़ी? कद जाकुम मिनल, कुरान की आयत नहीं पढ़ी, उसकी तफसीर नहीं पढ़ी? नाउजुबिल्लाह, कुरान की आयत की तफसीर नहीं पढ़ी? यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, लेकिन नूर से क्या मुराद है भाई? उससे मुराद तफसीर कुरान की तफसीर। जलालेन उठाओ, मदारिक उठाओ, तफसीर वैसावी उठाओ। तबरी है वहाँ पर भाई। तफसीर में क्या लिखा है ये बताओ, मुहद्दिसिन ने क्या लिखा है? हिदायत का नूर है, हिदायत का नूर है। वो कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? नूर से पैदा कहाँ नहीं लिखा है? कहाँ लिखा है? नूर से पैदा नहीं है। कहाँ लिखा है? मैं आपको इनबॉक्स में स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है? मैं पूछ रहा हूँ तफसीर में कहाँ लिखा है कि हिदायत के नूर है? इमाम तबरी वाज़ेह तौर से लिखा है। क्या लिखा है? इमाम तबरानी ने ये कहा है कि सिर्फ हिदायत के नूर है। उन्होंने भाई पैदा, मैं पूछ रहा हूँ इमाम तबरानी ने ये लिखा है? जैसे तुम बोल रहे हो कि सिर्फ हिदायत के नूर है, तो इमाम तबरानी ने ये कहा है? तबरी कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ इमाम तबरी ने ये कहा है? तबरानी क्यों कह रहा हो भाई? सुनो, इमाम तबरी ने ये कहा है कि सिर्फ हिदायत के नूर है। नहीं ये तो फिर तुमने अपनी तरफ से कैसे बोल दिया? ये दलील भी तुम्हारी खोखली हुई। इमाम तबरी ने ये नहीं कहा कि हुजूर सिर्फ हिदायत के नूर हैं, तो तुमने अपनी तरफ से कह दिया। ये भी तुम्हारी दलील खोखली। दूसरी दलील पेश करो। नूर से पैदा है, ये बात किसने कही है? अब तो मुझे अरे मैं पूछ रहा हूँ नूर से पैदा, यहाँ पे बहस ही नहीं है नूर से पैदा है या नहीं है। यहाँ बहस है कि हुजूर नूर है या नहीं है। नहीं मेरा, अरे मैं पूछ रहा हूँ, तुमने अभी सुनो मेरी बात सुनो। तुमने अभी ये कहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम से मकाम बड़ा मर्तबा या मकाम किसी का भी अगर हम देते हैं तो ईमान का जो जुज़ हुजूर ने बताया कि ईमान मुकम्मल नहीं होगा, तो ईमान मुकम्मल होगा ही नहीं। फिर ऐसा था कि नहीं? हाँ ऐसा था। अच्छा ये बताओ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नूर है या नहीं? वो तो नूर है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी लिबादा ओढ़े हुजूर के बारगाह में आए या नहीं आए? तो अल्लाह ने उनको जिस्मानी, एक मिनट, उनको अल्लाह ने दोनों इख्तियार दे दिए, अल्लाह के रसूल को नहीं दिए।
भाई सुनिए भाई सुनिए ये मकाम और मर्तबा तुमने जिब्रील अलैहिस्सलाम का बढ़ा दिया। जिब्रील जिनसे बशर नहीं है। सुनिए आप नहीं उनके पास ये हुनर है कि नहीं कि वो किसी का भी चेहरा इख्तियार कर सकते हैं। जिनसे बशर है। मैं पूछ रहा हूँ जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये इख्तियार है कि नहीं? नहीं भाई, ये भाई इंसान की खुसूसियत में से नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि नहीं? नहीं है। ए भाई सुनना, जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार दिया ना किसी का भी चेहरा इख्तियार करने का, हुजूर को छोड़ के। हाँ दिया है ना? दिया है। तो अल्लाह के रसूल को नहीं दिया, अल्लाह के रसूल को नहीं दिया। भाई इंसान की खुसूसियत नहीं है भाई, मतलब अल्लाह के रसूल की खुसूसियत नहीं है। माज़अल्लाह, मतलब तूने मकाम पर घड़ा दिया हुजूर का। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मतलब अल्लाह ने नहीं दिया, ये कहाँ पड़ा? उसका हवाला पेश करो। अल्लाह ने दिया है, ये बताइए। नहीं तुमने दावा किया नहीं दिया, और आपने दावा किया है दिया है। मैं तो दावा कर रहा हूँ, तुमने दावा किया नहीं दिया। इंसानियत की खुसूसियत नहीं है, वो हवाला पेश करो भाई। जो चीज नॉर्मल होती है उसका हवाला नहीं होती। नॉर्मल तुम्हारा दिमाग है। मैंने पूछा अपनी जात को गाय मत चलाओ। दिमाग नहीं भाई, आपका दिमाग। तेरे दिमाग में गोबर भरा। सुनो इधर, इंसान की खुसूसियत है। जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये इख्तियार दे दिया और हुजूर को नहीं दिया, मतलब हुजूर का मकाम घटा दिया अल्लाह ने। और हुजूर को दिया है, ये अल्लाह ने कहाँ पर बताया? मैं बता रहा हूँ ना, मैं सब बताऊंगा तुम्हें, लेकिन पहले तुम मेरे बात का जवाब दो ना। तुमने अभी शुरू में कहा था कि अगर हुजूर का मकाम और मर्तबा किसी से घटा दिया तो ईमान मुकम्मल नहीं होगा, वो काफिर होगा, वो मुनाफिक होगा। तो मुनाफिक तुम साबित हो रहे हो। ये बताओ, जिब्रील अलैहिस्सलाम को दिया, अल्लाह के रसूल को नहीं दिया, तो मकाम घटाया या नहीं घटाया? एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एग्जांपल अपने पास मुझे बताओ कि हुजूर को नहीं दिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम को दिया, तो मकाम घटा दिया ना अल्लाह ने? नहीं मकाम नहीं घटा भाई, मकाम कैसे? सुनो मैं बता रहा हूँ। सुनाओ। इमाम महमूद ये कौन है? महमूद आलूसी ने उनकी ये कौन बताया है। हाँ। कल इमाम महमूद आलूसी को नहीं पहचानते? हाँ बोलो। इमाम महमूद आलूसी ने अपने तफसीर में फरमाया है, कल ज़ियाद के घर क्या होगा, कौन आएगा और क्या करेगा, ये सब अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जाने तो उनकी इल्म में कोई कमी आएगी। ये मैं पूछ रहा हूँ, इमाम आलूसी ने ये फरमाया क्या कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूरानियत नहीं दी, जिब्रील अलैहिस्सलाम को नूरानियत और बसर दोनों दी, तो उनका मकाम नहीं घटा? ये फरमाया क्या? नहीं फरमाया ना। तो ये हवाला क्यों पेश कर रहा है मेरे सामने? वो हवाला पेश कर कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को बशर नूरानियत दोनों चीज अल्लाह ने बख्शी है और हुजूर को नहीं बख्शी है, तो उसका मकाम फिर भी नहीं घटा। ये हवाला पेश कर। आप मुझे ये हवाला दीजिए, अल्लाह ने कहा इधर उधर मत भाग, इधर उधर नहीं भागो। दावा तुमने किया है, दावे पे दलील तुम पेश करोगे। ये इंसान की खुसूसियत नहीं है। इंसान की खुसूसियत नहीं है, मुझे हवाला दो ना। तुम्हारे कहने से नहीं होता बेटा। हवाला किस मुहद्दिसीन मुफस्सरीन ने ये कहा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दोनों हुनर दिए और अल्लाह के रसूल को नहीं दिया, फिर भी हुजूर का मकाम मर्तबा नहीं घटा? वो हवाला पेश करो। जो चीज नॉर्मल होती है उनकी, अरे नॉर्मल तेरे कहने से ये नॉर्मल बात है? हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा है, ये नॉर्मल बात है? हुजूर की शान में बकवास कर रहा है, ये नॉर्मल बात है? भी तूने शुरू में कहा एक खुसूसियत अता किया है, सुनो नहीं आप सुनो, अभी दे रहा हूँ, अभी अपने मुंह से बोलेगा तू। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा किसका है? रसूल का है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल का है ना? तो रसूल से ज्यादा मर्तबा, मकाम, इल्म किसी और को दिया है? नहीं दिया ना। तो अब तूने ये कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को दोनों हुनर है, हाँ, और हुजूर को नहीं है, तो ये मकाम घटा या नहीं घटा हुजूर का? नहीं हाँ, तो ये हवाला देना, नहीं घटा ये कहाँ पढ़ा तूने? यहाँ पर मलकुल मौत का। अरे मैं हवाला पूछ रहा हूँ, किस मुहद्दिसीन ने कहा कि हुजूर का मकाम नहीं घटेगा? एग्जांपल सुनिए। एग्जांपल नहीं, हवाला। आप हवाला दीजिए।
जुबैर रसूल भाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जुबैर भाई कहाँ से अता पकड़ किया, के लाए आप उसको? हवाला दीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैर भाई अल्लाह कहाँ ने से पकड़ रसूल के लाए सल्लल्लाहु उसको? अलैहि वसल्लम को दिया है। आप हवाला दीजिए, आप वो मेरे हवाला पेनिस दीजिए। में था ये। मैंने जाहिर तुमसे भाई अभी का अभी रसूल तुम्हारे मुंह से उगलवाया, तुमने खुद बोला कि हुजूर का मकाम और मर्तबा अल्लाह के रसूल के बाद सबसे बड़ा है, तुमने अपने मुंह से अभी बोला, हाँ बोला तो आप कौन सा हवाला मांग रहे हो जब तुम अपने मुंह जो से चीज खुद मान इंसान रहे की हो? खुसूसियत नहीं है, जो चीज इंसान की खुसूसियत नहीं है, अबे तो वो इंसान चीज की आप खुसूसियत इंसान नहीं है। की अबे खुसूसियत सुन क्यों सुन ऐड कर रहे हो? सुन, यहाँ इंसान की बात ही नहीं हो रही है, हाँ, यहाँ सिर्फ इंसान की बात हो रही है। तो रसूल क्या इंसान नहीं है? रसूल इंसान नहीं अबे है? वमा रसूल अरसलना बशर का नहीं है इल्ला भाई। रहमतल लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन की बात हो रही है जाहिल। हाँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसान है, और अबे इंसान की जो जो किसकी खुसूसियत तेरी है तरह रसूल में इंसान भी है? है। अपनी तरह इंसान समझता है? नहीं नहीं, मेरी तरह नहीं है, मेरी तरह नहीं तो है। जाहिल के रसूल बच्चे सबसे तो आला फिर क्यों इंसान है। कंपेयर कर रहा है तू? मुझे बता पहले। रसूल सबसे आला इंसान है। मैं कब कह रहा हूँ? मैं तो कब फिर कह रहा तूने हूँ खुद रसूल बोला, मेरी तरह इंसान है? मैं कब कह रहा हूँ? तूने खुद अभी बोला कि हुजूर अलैहिस्सलातु क्या वस्सलाम बोला? अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मकाम मर्तबा सबसे ज्यादा मेरे नबी का बड़ा है। तो तूने कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने दोनों हुनर दे दिए और हुजूर को नहीं दिया, तो मकाम घटा या नहीं घटा? मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल मत दे, मुझे हवाला दे, मेरे एग्जाम्पल सुनिए हवाला पहले। हवाला। आप यहाँ पर हवाला दीजिए। अबे मुझसे अल्लाह हवाला ने मांग रहा हुजूर है, को ये बोल तू खुद अता रहा है, फरमाया, हवाला आप मुझसे हवाला मांग रहा है। दीजिए। आप हदीस दीजिए, कुरान दीजिए। अरे आप तेरे मुंह हदीस से दीजिए, उगलवाया कुरान दीजिए। मैंने, अल्लाह ने हुजूर को ये तेरे मुंह से उगलवाया कि अल्लाह ने ये फरमाया कि नहीं कि सबसे ज्यादा, सुन, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा ये खुसूसियत मकाम और नहीं है मर्तबा भाई। किसका बड़ा है? ये इंसान की खुसूसियत नहीं है। अरे जैसे इंसान की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मफातिहुल बेटा गैब अभी नहीं तुम लोग फरमाया, बच्चे हो, नहीं आता क्या है? अभी तुम लोग चूजे हो, अंडे के ऐसे चूजे, रसूलुल्लाह अभी सल्लल्लाहु तुम अलैहि लोग वसल्लम अंडे का के मकाम चूजे घट हो। गया? हेलो, भाई चूजा कौन है ये बात तो वाजिब अभी तौर ये से जब जाएगी रिकॉर्डिंग तो अब हम वाजिब तौर से फैसला कर पता चल लेंगे। रहा है। ठीक है, फैसला तुमने करेगी। 5 झूठ बोले और आपने एक भी हवाला नहीं पेश दिया, नहीं आपने किया। हवाला नहीं दिया। ये इंसान की खुसूसियत है, आप हवाला दो। मैंने तुम्हारे मुंह से ये उगलवाया कि नहीं अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम किसका है? आपको 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 उसूल ही नहीं पता। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम किसका है? रसूल का है। अच्छा, मर्तबे में, इल्म में, सब में किसी का ये इख्तियार है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कोई हुनर ना दिया हो और किसी को और को दे दिया हो? हाँ, हो सकता है। सब, हाँ, हवाला पेश कर, जल्दी जल्दी हवाला पेश कर, जल्दी पेश कर, हवाला पेश कर जल्दी। कहाँ पढ़ा तूने, कहाँ पढ़ा तूने? जल्दी हवाला पेश कर। जैसे मलाकुल, अरे सुनिए जैसे मलाकुल मौत की खुसूसियत है रूह को लाना, तो अल्लाह के रसूल रूह को नहीं ला सके? नहीं है रूह को लाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत नहीं है, ये मलाकुल मौत की ये खुसूसियत है। कहाँ पढ़ा तूने? आपके दिमाग में प्रॉब्लम है। अबे मैं पूछ रहा हूँ कि अगर अल्लाह के रसूल चाहे, अबे मैं पूछ रहा हूँ, पाकिस्तानी है तो आप लोगों का दिमाग बहुत कमजोर है। अरे सुन तो ले, अबे सुन तो ले, अबे सुन तो ले, अबे सुन तो ले, अबे सुन तो ले। अगर अल्लाह के रसूल चाहे, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, एक एग्जाम्पल नहीं सुनेगा, दे सकते आप कैसे डिबेट करने आए हो? नहीं सुनेगा। हाँ बताइए। मैं पूछ रहा हूँ, नहीं सुनेगा, एक बात पूछता है, नहीं सुनेगा मेरी बात। अरे बताइए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर अल्लाह के रसूल अल्लाह से ये कहे कि अल्लाह मुझे रूह निकालने की ताकत और कुव्वत है, तो अल्लाह देगा कि नहीं देगा? हाँ देगा। तो फिर तूने कैसे बोल दिया कि नहीं है, साला जाहिल? अल्लाह ने नहीं दिया। अबे जाहिल के बच्चे, नहीं दिया तूने कहाँ पढ़ा? अरे दिया कहाँ पर? अबे कहाँ पढ़ा तूने कि नहीं दिया? तो अल्लाह ने दिया, ये कहाँ पर पढ़ा? अबे तो मैं तुझसे अभी, तूने मुंह से बोला कि अल्लाह के रसूल अगर ये कहे कि अल्लाह मुझे ये ताकत दे कि मैं इसकी रूह को निकाल कर लेके आऊं, तो अल्लाह देगा कि नहीं देगा? ये रसूल मांगता अबे कुत्ते की औलाद, तू खुद अपने मुंह से बोल रहा है और दोनों बातें खुद बेदबी पे बेदबी करे जा रहे हैं नबी की। साला जाहिल कहेगा। अबे कह रहा हूँ, अगर मांगता, अरे तूने अभी अपने मुंह से क्या बोला? तूने अपने मुंह से भी क्या बोला कि अल्लाह देगा? जब देगा तो तूने अकीदा कैसे बना लिया कि नहीं है उनके पास?
अबे है इसका अबे दलील क्या अबे है? सुन है अबे इसका दलील अबे क्या है? अबे जिसका कोई शैतान दलील नहीं है, अबे आप शैतान उनको अकीदा बना रहे हो। अबे जिसका कोई दलील शैतान है, उनको अकीदा बना अबे रहे हो। शैतान मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया। जिसका कोई हाँ हवाला नहीं है, आप उनका अकीदा अबे बना तो रहे हो। तेरे मुंह से उगलवा रहा हूँ ना मैं बात को। तूने अभी मुंह से अपने क्या रसूल बोला? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ नहीं किया। तूने अपने कहाँ मुंह पर से भी दुआ क्या किया बोला? है? अभी आप तूने मुझे मुंह से हवाला क्या दो। बोला? अभी तूने मुंह दुआ से क्या कहाँ पर बोला? किया? दुआ कहाँ पर किया? दुआ कहाँ पर अबे किया है? गधे की औलाद, मैंने तुझे शर्त क्या ये पूछा अभी? शर्त यहाँ पर ये है, दुआ करना तूने चाहिए। दुआ 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 तूने करना कहा चाहिए। कि रसूल हाँ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि देगा। वसल्लम दुआ नहीं फरमाया, दुआ तूने नहीं कहा कि फरमाया। अल्लाह देगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, अल्लाह मुझे अबे शहीद गधे कीजिए, बड़बड़ाना अल्लाह शुरू मुझे कर दिया। शहीद कीजिए। लेकिन बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुबैर नहीं किया। ओ जुबैर तो आप क्या बोलोगे? जुबैर क्या बोलोगे यहाँ पर क्या बोलोगे? जुबैर भाई सुनो, तुम दवा लगा रहे हो तो तुमको तो दलील देना पड़ेगा ना, तो तुम तो दलील नहीं दे रहे हो। अरे जुबैर सुनो, अपने मुंह से हामी भर रहा है और दलील नहीं दे रहा है। हाँ वही तो देख रहा हूँ। वो अभी दवा अपने करा अभी है, इसने अपने मुंह से अभी इसने अपने मुंह से कहा, सुनो अभी आपको जो है सुनो 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 अभी इसने अपने मुंह से वो कहा। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे कुरान और हदीस में फरमाया है। अरे मैं क्या पूछ इसके रहा अलावा हूँ? कोई खुसूसियत अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ? मलकुल मौत आप को मेरे रूह लिए निकालने एक का सवाल का हुनर जवाब दिया नहीं दे अल्लाह ने। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ? अल्लाह ने मलकुल मौत को रूह निकालने का हुनर दिया, तो मैंने इससे पूछा कि अल्लाह के रसूल ने अगर ये कहा कि अल्लाह मुझे भी दे, तो अल्लाह देगा कि नहीं देगा? तो इसने बोला हाँ देगा, तो बात खत्म हो गई। तो जब देगा तो इसने मुंह से कैसे कह दिया? लेकिन दिया तो नहीं यार। अबे तो सुअर की औलाद, गधे के बच्चे, तूने अपनी मुंह से बोला ना अभी। दिया तो नहीं। देख लो, अरे दिया मतलब तो नहीं दे सकता अल्लाह। रसूल अगर मांगता नहीं मांगता दिया, फिर देता, अबे अगर नहीं मांगता दिया फिर तूने देता। कहाँ पढ़ा? लेकिन नहीं दिया दिया तो कहाँ नहीं। पढ़ा? नहीं दिया कहाँ पढ़ा तूने? दिया कहाँ पर पड़ा? तेरे मुंह से अभी दिया कहाँ बोलवाया पर मैंने। अरे अगर मांगता तेरे मुंह से उगलवाया चंडाल की औलाद, गधे। अगर तू करता फिर देता, लेकिन रसूल तेरे ने बस दुआ की नहीं किया। बेटा, तेरे बस की दुआ बात नहीं है। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, झूठ पे झूठ बोले। बस 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 बस। रसूल दुआ नहीं किया तो फिर कैसे देगा? दुआ नहीं किया कैसे देगा? अबे तो नहीं किया तो हमारा अकीदा ये है ना कि अल्लाह देगा, अल्लाह हर एक हुनर देगा हाँ, दे जो सकता है, फरिश्तों को दे दिया। सकता सुन है। सुन 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 मेरी बात सुन ठंडे दिमाग से सुन, मेरी ठंडे दिमाग से बात सुन। हमारा अकीदा यही तो है। अभी तूने अपने मुंह से ये बोला कि सबसे ज्यादा मकाम और मर्तबे में अल्लाह के बाद मेरे रसूल का है। तो रसूल का है तो जितनी कायनात में नबी आए, जितनी कायनात में फरिश्ते मौजूद हैं जो वो काम कर रहे हैं, तो वो सारे काम पर अल्लाह ने मेरे नबी को कादिर रखा है, तभी तो मकाम और मर्तबा बड़ा है। जाहिल आदमी, कितना बड़ा तू जाहिल है बे। सब खुसूसियत रसूल का नहीं तो है। फिर मकाम और मर्तबा बड़ा कैसे हुआ अल्लाह के बाद? फिर अल्लाह ने बड़ा किया तो फिर बड़ा कैसे हुआ। किया? कैसे किया बड़ा? सुने 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 अरे इसको एक भगाओ यार, जमात की- खामगा बेद भी कर रहा है मेरे नबी की, गाली वाली खालेगा ये, भगाओ इसको। जमात के आइम्मा का अक़वाल है। जुबैर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद जुबैर, नबूवत पढ़ना और लिखना नहीं आता था, पढ़ना और लाहौल लिखना बिला नहीं कुव्वत। आता देखो था। अब ये जाहिल बोल रहा है मेरे नबी को। एक जमात उलमा भगाओ का इसको राय है। जाहिल को। आप मुझे ये बताएं, भगाओ इसको। जो लोग जुबैर, पढ़ सकता है, लिख सकता है, आप मेरा जवाब दीजिए। ओ जुबैर, आप मतलब मेरा इसने जवाब इसने दीजिए। इसने एक इसने इसने ये मान लिया कि अल्लाह के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम को ना मकाम में ना मर्तबे में बड़ाई है ही नहीं, क्योंकि उनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता था। माज़अल्लाह, ये अक़वाल ये गधा कहाँ, देखो कितनी बेइज्जती कर रहा है मेरे नबी की, दलील नहीं दे रहा है। ये अक़वाल बहुत सारे आइमा का है। अबे गधे के बच्चे, किसी ने मेरे नबी के आप तारीख़ तबरीक खोल लीजिए, आप मिशकात का शरह, अब क्या इसमें क्या लिखा है? उसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है उसमें? क्या लिखा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक खुसूसियत अता नहीं फरमाया क्या? कि वो पढ़ सकता है, लिख सकता है। अबे ये बादन नबूवत, अच्छा एक और मिनट, क़ब्ल नबूवत आगे क्या लिखा? आगे क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है? कि उनका मकाम और मर्तबा पढ़ने लिखने वालों से कम है, ये लिखा है? नहीं। तो तूने कैसे बोला अभी? नहीं, इस बात में तूने कैसे बोला अभी? आपका जवाब आ जाता है। तूने कैसे बोला अभी? जब उन्होंने नहीं बोला तो तूने कैसे बोला? मैंने कब कहा भाई? मैंने कब कहा? तूने अभी तो बोला कि हुजूर को पढ़ना लिखना नहीं आता है। नहीं आ रहा। अरे आपको एग्जाम्पल नहीं समझ में नहीं आ रहा। अबे शैतान की औलाद, तू फोन काट और जा भाग यहाँ से, तेरी रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ यूट्यूब पर। आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा। आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा। आपको तो एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे पहले बता रहे थे जो खुसूसियत जिब्रील में है, जो खुसूसियत जिब्राइल में है, वो खुसूसियत नबी में नहीं है।
जुबैर सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए आप ओ बता जुबैर रही है सुनिए मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए मेरी बात अरे तेरी बात कुछ नहीं सुनूंगा, झूठा मक्कार आदमी है तू। भाग यहाँ से, रख मैं फोन। झूठा नहीं और फोन, अरे आपने फोन एक काटो इसका, एग्जांपल का उत्तर नहीं दे रहा भाई फोन काटो इस आपने कमीने का, एक एग्जांपल का जवाब नहीं दे फोन सकते काटो इसका जाहिल का। हम का बेदबी करे जा रहा है जाहिल नबी की। कौन है ये सब जानते हैं हेलो, हाँ दिख रहा है कौन जाहिल है भाई। फोन काटो इसका जाहिल का, हाँ जाहिल है भगा उस जाहिल को। एक एग्जांपल का जवाब नहीं दे सकते हो और कट करता है